So, our today's topic for NEET Chemistry, Chapter 1, Topic 1 is Classification of Universe. We can classify universe in two types, matter or energy. Matter is again classified into two types, physical classification and chemical classification. In physical classification, solid, liquid and gases are there. In chemical classification, pure substances and mixtures are there. So we again divide mixtures into homogeneous and heterogeneous mixtures and pure substances into elements and compounds. Elements are of three types, metals, nonmetals and metalloids, whereas compounds are of two types, organic compounds and inorganic compounds. So here is the full classification of universe. Now we go to matter. What is matter? Anything that has mass and occupies some space is matter, which we can feel by our five senses. So anything that has mass and occupies some space is matter. And matter under ordinary condition, pressure and temperature is classified into physical and chemical classification. These are two types of classification in which matter is divided. So we can now define physical classification as solid. Solid has definite volume. It has definite volume and it has a fixed shape. A fixed shape. So examples are sugar, iron, gold, wood, etc. etc. Anything that has a definite volume and definite shape comes under solid. Now liquid. We can define liquid as it has a definite volume but not has a definite shape. So they take up the shape of the vessel in which they are put. मतलब लिक्विड को हम जिस भी वेसल में डालेंगे, बीकर में डालेंगे, बीकर का शेप ले लेगा, फ्लास्क में डालेंगे, वो फ्लास्क का शेप ले लेगा. सो इसका हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है, पर इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता. वो इसके जो बीकर जो भी हम इसको लेंगे वेसल में, उसके अकॉर्डिंग ये अपना शेप लेता है. तो ये हो गया लिक्विड. गैसेस होता है, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट नीदर पजेज अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप. इसका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप नहीं होता है. और इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2. सो ये हमारा हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन. अब केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं. इसको दो टाइप में किया है, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में. प्योर सब्सटेंस हम उन्हें बोलते हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय एनी फिजिकल मेथड. उनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो प्योर रहते हैं. सो अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस. उसमें सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस होना चाहिए, इसीलिए हम उसे प्योर कहते हैं. प्योर में आता है हमारा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब एलिमेंट्स में हमारे कोई से भी एलिमेंट हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा, ये सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं. और कंपाउंड्स के हम एग्जांपल ले, कुछ भी HCl हो गया, H2O वाटर, HCl, H2O, ये सारे कंपाउंड्स हैं. और एलिमेंट्स में जैसे कि हम ले लेंगे सोडियम और बाकी के सारे कोई से भी एलिमेंट्स जो भी पीरियोडिक टेबल में होते हैं. हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही टाइप का एटम होता है. सोडियम है, इसमें सिर्फ सोडियम एटम है. और ऐसे हम देखें मैग्नीशियम है तो इसमें सिर्फ मैग्नीशियम है, ये भी एक एलिमेंट हो गया, इसमें एक ही टाइप का एटम होता है. और कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होते हैं. मतलब एक नहीं होगा पर एक से ज़्यादा एटम उसमें होंगे, तो उसे हम कंपाउंड्स बोलेंगे. अगर हमें कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस containing more than one kind of elements or atoms which are combined together in a fixed proportion by weight, which can be decomposed into simple substances by suitable chemical methods. Or this property of compound commonly different from those of its constituent elements. मतलब उस कंपाउंड की
जिस एलिमेंट्स से वो बना होगा कांस्टेंट एलिमेंट्स से डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी. ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू organic compounds. So what are organic compounds? The compounds which we get from organic sources. So compounds obtained from any living source are termed as organic compounds. For example, urea. So urea is the example of organic compound. And glucose also. So urea and glucose are examples of organic compounds. Now move to the inorganic compounds. Compounds obtained from non-living sources such as rocks, minerals, etc. are inorganic compounds. For example, NaCl, CuCl, ZnS, zinc sulfide, magnesium oxide, etc. They are all inorganic. So here we complete the pure substances. So now we are coming towards the mixture. मिक्सचर्स हमारे पास दो टाइप के हो गए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर्स का मतलब होता है कि पूरा ही इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर जिस चीज़ से बना है वो पूरा यूनिफॉर्म होता है. जैसे कि हम ले लें शुगर प्लस वाटर और सॉल्ट प्लस वाटर. ये जो दो एग्जाम्पल हैं ये होमोजेनियस के हैं और ये दिखने में पूरे यूनिफॉर्म होता है. इनको हम अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये होमोजेनियस हो गए. एंड हेट्रोजीनियस इज़ द मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट. इसमें हमें यूनिफॉर्मली प्रेजेंट मिलेंगे और इसमें नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे. और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल. सो वाटर प्लस सैंड और वाटर प्लस ऑयल हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे. ये दोनों एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. हम उन्हें देख कर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए हेट्रोजीनियस में आते हैं. सो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स का. तो इसे एक बार समरी में हम देख लें दोबारा कि क्लासिफिकेशन यूनिवर्स का दो टाइप से होगा, मैटर में और एनर्जी में. फिर मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन होगा. फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर पे होगा. मिक्सचर को हम होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस करके डिफ़ाइन कर देंगे और प्योर सब्सटेंस में आ जाएंगे हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट्स में अगेन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये सब आप जानते ही हैं, ये सब एलिमेंट्स में आएंगे. कंपाउंड्स में हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.